All right, let's begin. I welcome everyone to this special session. I know I'm not leaving you every single day. Okay, so welcome to this special session. I want every one of you to please switch on your videos. So, this session also will be kind of very interesting, and you'll get lots and lots of golden nuggets from this session. I'm pretty much sure here. So, how many of you, I know I've done the poll on the group, but how many of you do believe in Vastu Shastra? How many of you? You can just raise your hands. You do believe. All right. Okay. Okay. Very good. So, see, Vastu Shastra is one of the oldest, what do you say, kind of text or the scriptures which are available in our Vedas, right? It's coming from Atharva Veda and it has a very significant space. Okay. And it also impacts our every area of life. It's not just money, yeah, career, it's not that. It's also health that gets impacted. Okay. So I want you to please switch on your videos and be present to whatever the expert who is there on this call will share with you. Um, I would like to introduce Miss Manisha Nagaria. She is my actually. She happens to be my family member only. So, if you can just switch on your video, and I want you all to welcome her. Yes, she's here. Okay. नमस्ते। So, yes, thank you. Thank you so much, Mai, for giving us this time. थैंक यू नेहा एंड थैंक यू ऑल ऑफ So, यू। So she happens to be an expert in Vastu Shastra. Before she begins, I will tell you a little about what I experienced in case of Vastu Shastra. Okay, and this is kind of really very serious. Okay, so my brothers, oh sorry, my husband's brothers. Okay, there are three of them, right? And two of his brothers, his elder brothers, right? They lost, we lost family members because of probably this issue, I can tell you, right? Two family members have died in my own family, and when I go back and look in the house they were staying when this problem happened, जब उनको ये problem हुई, अगर मैं जाकर उनका घर को को देखूं ना, तो whatever the point that came up, that if this is the thing, if you have this washroom in this place, there are certain things, right? If you have washroom in this space, there will be loss of money and there will be loss of life, both the things. And both the cases that happened in my family, both the houses were having the same issue. That was like a shocker for me, that one was a 19-year-old boy who died, and one was a 24-year lady who died, right, in my family. So very young people, and they succumb to such diseases and all. They died because of disease. अरे And यार तुम वापस क्यों देखो उधर। yes, Raviji, you want to say something? नो थैंक यू। So I, from that point of time, it was like, yes, these things are very important, and if not everything, but certain things we need to definitely take care. Definitely take care, right? And that's why I have here, and whatever guidance she has given to me, it has always worked for me, and she has helped lot and lot of people. It's like जो भी ये बोलते हैं ना, अगर आपने उसकी रेमेडीज कर ली तो आपके लाइफ में जादू एंड चमत्कार भी हो सकता है. So that much powerful it is, right? So I want you to have an open mind and receive whatever she wants to share, right? Just have some open mind and receive whatever she has to share, and we will take all your questions in the end. Okay, we'll take all your questions in the end. So all the stage is yours. Mai, you can go ahead and say whatever it is. Please go ahead. ओके नेहा, थैंक यू नेहा। पहले तो नेहा आपको थैंक यू कि योगा के थ्रू आप इतना अच्छा काम कर रहे हो।
और थैंक यू Thank इसलिए, you. कंग्रेचुलेट तो मैं कर ही रही हूँ, बट थैंक यू इसलिए कि उसी बहाने से आप जो 20, 25, 50, 100 लोग को आ, हील कर रहे हो। नॉट ओनली उनके मतलब बॉडी से, बट उनके उनको मेंटली भी हील कर रहे हो आप। तो इससे बड़ा तो काम कोई हो ही नहीं सकता है। और Thank you, thank you. मेरी भी अगर And थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। definitely. And one more thing that she talks in Hindi mostly. I think everyone is comfortable in Hindi, right? Give me a thumbs up. Is there anyone who is not comfortable? Then unko thoda sa, I will try to explain the things, right? So yes, Mai, please continue. ओके, थैंक यू। Yes. सो शुरू से शुरू करो तो नेहा आपने बता ही दिया कि अ, वास्तु जो है वो हमारे पुराणों में रहता था। बट वास्तु एक ऐसी चीज है कि जो बियॉन्ड द मतलब कोई धर्म, कोई जाति, किसी से भी रिलेटेड नहीं है। शायद अब हम लोग जिस जगह से आए हैं तो हमें पता है कि ये पूरा पुराण में है। अथर्ववेद में इसका जिक्र है। कृष्णा ने जब सुदामा के साथ में, सुदामा का घर जब बनाने के लिए उनको ऑफर किया था, जब सुदामा कृष्णा के साथ ही थे उस समय, वो तो स्टोरी सभी को पता है, बट उसका छोटा सा एक मैं देना चाहूंगी रेफरेंस वास्तु के हिसाब से। तो जब सुदामा कृष्णा के साथ थे और कृष्णा ने जब अपने काम वालों को या उनके सैनिकों को भेजा था कि जाकर सुदामा के घर को अच्छा बना दो या फिर उनको लग्जरी वगैरह सब प्रोवाइड कर दो, तो उस समय सुदामा की जो वाइफ थी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा इतना जो गांव है, ये जिस जगह मैं रहती हूँ, सारे लोग अगर गरीब रहे और मैं अकेली रिच हो गई तो ये उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप पूरे गांव को एक साथ करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो उस समय ये कृष्णा शायद सीरीज वगैरह अब देखे तो उसमें भी होगा उसका वर्णन। उसमें कृष्णा ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जो है उन्होंने उनको ऑर्डर दिए कि जाकर ये पूरा गांव का वास्तु इतना ऑस्पिशियस बनाओ कि इस गांव में कभी भी कोई बीमारी, गरीबी या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम वहां ना रहे। तो वास्तु एक ऐसी चीज है कि जो हमको लग्जरी तो देती है, ऑब्वियसली देती है लग्जरी। और कैसा है, भगवान ने हमको भेज दिया जमीन पर तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा। जैसे बोलते कि चिड़िया को दाना है, अ, जानवरों को भी मतलब तो कमाने जाते नहीं है, तो वैसे हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीजें रखी है कि जो कोड है उसको हम लोग डिकोड कर देंगे तो काफी कुछ मिलेगा। एक खजाना है वास्तु मतलब, बस आप उसको डिकोड करना सीख लो और सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ That's से true अभी, actually. सही है, बिल्कुल हाँ, सही है कि इसको समझना जरूरी है हाँ, और अप्लाई करना भी जरूरी है. बिल्कुल। तो वैसे तो वास्तुशास्त्र के बारे में शायद काफी लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। वास्तुशास्त्र में जो हम लोग जो वास्तु बोलते हैं वो वास्तु वास्तु पुरुष बोलकर एक जो हमारे मतलब जब भी हम लोग चार दीवारी बनाते हैं, चाहे कुछ भी रहने दो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी रहते हैं, उस समय जैसे ही चार दीवारें स्टार्ट हो जाती है बननी, उसी समय वास्तु पुरुष की वहां पर स्थापना होती है। तो वास्तु पुरुष अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ में 32 देवता रहते हैं और रिमेनिंग असुर। असुर भी इसमें इवन इक्वली रहते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं उस घर में रहने वाले के लिए। तो उस जगह पे जो जो देवता रहते हैं उनके हिसाब से वो लोग अपने घर का या हमारे पर्टिकुलर जगह का भार अपने ऊपर लेते हैं। तो जैसे नाभि में ब्रह्मा रहते हैं और बाकी सभी अलग अलग एरिया में अलग अलग देवता वास कर लेते हैं उसी समय। तो Okay. वास्तु पुरुष जो है वो क्लियर है सभी को? यस यस यस. आप जो बोल रहे हो कि जैसे आप अपने घर का बॉक्स बनाते हो, हाँ, हाँ, तो राइट उसमें एक वास्तु पुरुष का शेप या फिगर होता है जो फिट करते हाँ। हैं उसमें, राइट? वास्तु एंड पुरुष अपने आप में उनका वास अपने आप में हो हो जाता जाता है। है. जिस 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 घड़ी हम जिस लोग चार दीवारें स्टार्ट करते हैं, वास्तु पुरुष अपने आप से उसमें वास कर लेते हैं। ओके. तो जैसे हमने हाँ, अपना घर बनाने के लिए यू हाँ, नो फाउंडेशन बनाया और हाँ, वो बनाया, राइट? एंड वी पिलर्स स्टार्ट लगाए।
पिलर्स लगाए और हमने वो शुरू हाँ किया काम, तो उसी समय में वो वास्तु पुरुष वहां पर इट इज वो हाँ निवास करना शुरू कर जाते हैं। शुरू कर देते द वे ही इज सिटिंग और जैसा वो है उसमें, राइट, जैसे उनकी पोजिशनिंग होती है, उस हिसाब से हमारे घर में वो चीजें होनी चाहिए। जहां पर बिल्कुल किचन होना चाहिए वहां किचन होना हाँ चाहिए, जहां पर वॉशरूम होना चाहिए वहां पर वॉशरूम होना चाहिए। वॉशरूम होने चाहिए। लाइक यू हैव एनी तो फोटो और एनीथिंग माइंड टू शेयर वास्तु पुरुष का? अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। नो थोड़े प्रॉब्लम, सेकंड नो में। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके। तो वास्तु पुरुष जो थे वो हाँ औंधे मुंह हमारे मतलब जमीन पर या हमारे घर में ऐसे औंधा मुंह उनका वास होता है। तो अकॉर्डिंग टू विश्वकर्मा प्रकाश या मत्स्य पुराण और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार वास्तु पुरुष जो है उनका जो सर होता है, एक्चुअली 16 डायरेक्शन होती है, 16 डायरेक्शन। 16 डायरेक्शन में हमारा घर डिवाइड होता है। एक्चुअली तो 4 बट डायरेक्शन हमको पता डायरेक्शंस है, तो 4 ही होते हैं, हाँ। 4 ही होती है, वो सभी को राइट। पता है। लेकिन डायरेक्शन 4 के अलावा आपसे पहले की जो पीढ़ी है, शायद 90s या 80s के लोग, तो उनको पता होगा कि एक्चुअली 4 के अलावा 4 दिशाएं और होती है, जो स्कूल में भी सिखाते थे पहले। तो 4 दिशाएं होती है, नैऋत्य, आग्नेय, ईशान्य और वायव्य। ये 4 दिशाएं होती है, जिसको इंग्लिश में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये चारों के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा भी उन दो दिशाओं के बीच में और दो दो दिशाओं का जिक्र विश्वकर्मा प्रकाश में किया हुआ है। तो वो इसी तरह से 16 दिशाएं जो होती है हमारे घर को डिवाइड कर दी है। और उन 16 दिशाओं में एंगुलर डिवीजन मेथड जो होता है, उसके हिसाब से मैपिंग की जाती है। और उस मैपिंग के थ्रू हमको पता चलता है कि इस जगह को ईशान कौन कहेंगे, इस जगह को अग्नि कौन कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो भी है। तो यानी हम जस्ट ऐसे ही खड़े होकर ये नहीं बता सकते कि ये घर में हमारा नॉर्थ है या नहीं, ईस्ट है या बिल्कुल नहीं। वेस्ट है। जो पुराने लोग जो कई बार हम लोग हमारा घर किसी पंडित को दिखाने के लिए लेकर आते हैं या किसी जानकार को, कि वो लोग अंदाज से पूछते हैं कि सन कहाँ से निकलता है, तो सूर्योदय कहाँ मतलब से वो होता ईस्ट है। हाँ, ईस्ट है। अब सन तो एक जगह से तो नहीं निकलता है, सन शुरू में शुरुआत उसकी होती है नॉर्थ ईस्ट से। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जब हम लोग 10 बजे के टाइम पे देखेंगे तो एग्जैक्ट इसमें दिखता है, 8 साढ़े 8 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे वेस्ट की ओर हटता है। तो सन एग्जैक्ट निकलता तो नॉर्थ ईस्ट से है। तो वो ऐसे नहीं पता चल सकता है। उसको पता करने के लिए जरूरी है कि आप उसको मैपिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा। तो ये 16 डायरेक्शन में वास्तु पुरुष जो है वो औंधे मुंह हमारे घर में लेटे हुए हैं। तो उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में, उनके पैर साउथ वेस्ट में, और उनके जो हाथ है वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में होते हैं, जो दो ओके। कंधे होते हैं, जो बाजू। ओके। तो उनका इसी तरह से उनका पोस्चर होता है। और जो नाभि उनका होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। वो हमारे सेंटर घर का सेंटर ऑफ सेंटर होता है, नाभि इज द सेंटर ऑफ द सेंटर। हाउस, नाभि, हाँ। तो वास्तु पुरुष अभी जो, वैसे तो बहुत काफी कुछ है, शायद कई घंटे लग जाएंगे, बट अब आज का हमारा टॉपिक तो यही है कि वास्तु एंड हेल्थ, हेल्थ से रिलेशन। तो अगर सपोज आपके घर हाथ में अगर चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? कुछ पट्टी करोगे या कुछ दवाई लेकर ओके हो जाएगा, कुछ टैबलेट्स खा लोगे ओके हो जाएगा। पैर में चोट लग जाए तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके सर में अगर कुछ भी हल्का सा भी धक्का अगर लग जाए तो क्या होगा? आपका लाइफ पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ना आपके हाथ काम करेंगे या ना पैर काम करेंगे। तो सेम वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में होता है। और उस जगह पर अगर आपने सपोज कुछ भी गंदगी, कुछ भी किचन टॉयलेट्स वगैरह रहा, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है हमारे लाइफ पर होता ही होता है, 101% होता है। तो आपके शायद घर आज ना हो। हम्म तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन, वॉशरूम, किचन, वॉशरूम, डस्टबिन, डस्टबिन शू और रैक। मतलब बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई गंदगी नहीं, जितना हो सके उसको क्लीन रखो, खाली रखो, एम्प्टी रखो तो भी चलेगा। ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, कैसे अगर इनको ना सिंपली जो भी यहाँ पर अभी अटेंड कर रहे हैं, अगर इनको
अंदाज से लगाना है कि घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, तो ये अपने आप से क्या कर सकते हैं अभी? व्हाट कैन दे डू? कैन दे यूज द कंपास और समथिंग और? यस यस यस, ये कंपास यूज करना चाहिए। कंपास में भी काफी वेरिएशन होते हैं। ओके। मतलब थोड़ा भी कंपास अगर इधर उधर हुआ तो नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा। तो उसके हम्म। लिए एंगुलर डिवीजन मेथड से हम लोग करते हैं। नहीं तो आप ओके। गूगल अर्थ से कर सकते हैं, या फिर किसी जानकार के थ्रू भी आप। उतना कुछ खर्च भी नहीं होता है उसमें, एक मैप बनवाने के लिए कुछ ज्यादा उतना इश्यू नहीं होता है। अगर किसी ओके। को आता है, काफी इंजीनियर्स भी हो गए तो वो लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। ऑटो कैड के थ्रू कर सकते हैं, उतना इश्यू नहीं होता है। ओके। ओके। लेकिन कंपास प्रेफरेबल इसलिए नहीं है कि कभी कभी कंपास, कभी आईफोन का कंपास अलग होता है, एंड्रॉइड का अलग होता है। हम लोग जो नॉर्मल कंपास यूज करते हैं उसका भी अलग अलग आता है। मतलब एक एक जो जोन होता है उसको 22.5 डिग्री में हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके। यानी ईच जोन को 22.5 डिग्री घर की मिलती है। ओके। तो अगर थोड़ा भी अगर सपोज इधर से उधर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसलिए हम लोग मैप को प्रेफर करते हैं। बट एटलीस्ट फॉर टू बिगिन, एक शुरुआत करने के लिए, अगर हमको पता है कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है हमारे घर में, हाँ, और वहां पर ऐसी कुछ चीजें हैं, तो उसको वहां से हटाना कितना जरूरी हटाना ही 100% जरूरी है। जरूरी ही है। अगर आपका रेंटेड हाउस है सपोज, और सबसे बड़ा इश्यू तो जब होता है, तब होता है जब हमारे घर में वहां पर टॉयलेट हो। टॉयलेट टॉयलेट एज इन नॉर्थ ईस्ट? ओके। टॉयलेट एज इन ओनली एवरीवन। टॉयलेट मैम जो। टाइम। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, टॉयलेट मतलब जो सीट होती है, वो टॉयलेट सीट, वो बिल्कुल भी वहां होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वो। 100% आपको कैंसर, क्रॉनिक डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, कैंसर तो देती ही देती है। अगर हमने कैंसर हॉस्पिटल में सर्च किया था तो ओके। काफी लोग तो ऑब्वियसली कोऑपरेट तो नहीं करते हैं, बट जो लोग कर सके तो उनसे हमने हमारी पूछताछ के बारे में यही पता चला कि उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ही है। एंड जो वॉशरूम। मैंने केस बताया मेरी फैमिली का, हाँ दोनों घर में सेम, मतलब उसी जगह पर ये वॉशरूम था। हाँ, होता ही है। मतलब अब वैसे तो बोलते हैं कि कैंसर हेरिडिटी है, वो है ये है, लेकिन होता तो है। ओके। सो देर इज नो रेमेडी, यू हैव टू नो नो, नो रेमेडी, नो रेमेडी एट ऑल। रिमूव द वॉशरूम फ्रॉम यू नॉर्थ हैव ईस्ट। टू रिमूव, बेस के साथ रिमूव करना। मतलब आपने टॉयलेट से क्लोज कर दिया टॉयलेट रूम, उसको यूज नहीं कर समवन, रहे हैं। If you are at rented house, Neha. इफ यू आर इन रेंटेड हाउस, Hmm. तो हाउस चेंज करना ही एक हाउस चेंज करना सॉल्यूशन है। पड़ेगा। और यू आप हैव जब टू भी चेंज द रेंटेड हाउस। हाउस से चेंज करेंगे, शिफ्ट करोगे, तो पहले ये एटलीस्ट ये तो चेक कर ही लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी ना हो इस तरह से कोई गड़बड़ी। व्हेन यू आर यूजिंग द कंपास, राइट, तो हाँ, आपको घर के सेंटर में खड़े होके वो कंपास यूज करना है। आई एम नहीं राइट? नहीं, नो। देन हाउ वी हैव टू चेक? आपने कंपास अपनी हथेली पर इस तरह लेना है, ओके। और उसको घर के जब हम लोग एंटर करते हैं घर में, ओके। जब डोरबेल बजाने के लिए हम लोग एंटर करते हैं घर में, तो मेन वो डोर। पोजीशन में घर से बाहर ओके। एक बार वहां पर मेजरमेंट लेना है। उसके बाद में घर के अंदर आप वेरियस अलग अलग जगह पे जाओगे, तो सेम पोजीशन में जो फेसिंग में हम लोग यहाँ खड़े थे बाहर, सेम फेसिंग में वहां पर भी, हर जगह पे सेम फेसिंग में खड़े रहकर उसके पूरे जो डिग्रीज है वो नोट डाउन करना। Oh, okay. Okay. Got it. Got it. Okay. Yes, yes. Please proceed. So Northeast में no washroom, no shoe rack, no dustbin, no kachra. It should नो be कचरा। very clean, very इवन neat. हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का जो पौधा है वो काफी बोलते हैं कि वहां रख सकते हैं, लेकिन हम हम्म। लोग तुलसी का पौधा भी थोड़ा हटा कर लगाने के लिए बोलते हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि जब हम लोग पौधे में पानी डालते हैं तो हम्म। जरूरी नहीं कि हम लोग एवरी डे उसको क्लीन करेंगे। ऑब्वियसली हम्म। नहीं कर पाते हैं। अ, आज Okay. डाले, कल फिर अगले दिन सुबह ही हम लोग उसको ध्यान देते हैं। जैसे हमारे घर में मिट्टी गिर गई तो हम लोग उठा लेंगे, लेकिन बाहर रही तो हम तो वो क्या अगले दिन के लिए टाल ही देते ना।
वो राइट इतनी मीठी राइट, भी आपको नुकसान देती है। नुकसान देती है, तो मेरे पास दैट में नॉर्थ एक ईस्ट कॉर्नर शुड बी वेरी क्लीन। हाँ, एक बच्चे का केस आया था। हम्म। 7 इयर्स का लड़का था, ओके बॉय। उसके मदर का नाम सना है, मेरी ओके। फ्रेंड है। तो उसने मतलब यहाँ पर एलवी प्रसाद हॉस्पिटल में आई थी, और हम्म एलवी प्रसाद में उन्होंने उनको बोला कि शायद आपके बच्चे को धीरे धीरे दिखना कम हो गया था, तो हम्म। शायद आपके बेटे को कुछ कैंसर जैसा लग रहा है। अभी हम लोग पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है बोलकर यहाँ पर ओके उन्होंने उसको 5-6 डेज यहाँ पर स्टे करवाया। ओके। तो मैंने उसको पूछा कि आपका एक बार ना मेरे को मैप बताओ, घर का घर मैप का। हो तो, नहीं हो तो मैं आपको गूगल अर्थ के थ्रू बनवा कर दूंगी, एक बार बताओ। तो उन्होंने मेरे को, उनके पास था मैप अवेलेबल, उसको ऑन द ओके। स्पॉट मैंने अपने जो ड्राफ्ट पर्सन है उसके थ्रू उसको ग्रीड करवाया। जैसे ही वो ग्रीड हुआ, नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपके पास में क्या है। अ, मतलब उसमें टॉयलेट तो नहीं है, और हम्म जहां तक हमारी सोच थी कि भाई टॉयलेट हो तो हम्म ही कैंसर होता है, तो ये कैंसर तो हो ही नहीं सकता, फिर भी टॉयलेट तो दिख नहीं रहे हैं, फिर क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वहां पर रेड कलर का कलर किया हुआ है, रेड कलर किया हुआ है वॉल। तो मैंने कहा इमीडिएट आप वो अपने बच्चे को लेकर आई थी, उसके हस्बैंड वहीं थे। हम्म। उसके हस्बैंड जॉब की वजह से नहीं आ पाए थे, तो वो अपने बच्चे और सास ससुर के साथ ही आई थी। तो उन्होंने इमीडिएट उसको कलर कुछ रिमूव किया। 2 डेज के बाद में रिपोर्ट आई कि हमारा जो डायग्नोस था वो रॉन्ग था, कैंसर नहीं है बेबी बच्चे को, दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स है विटामिन के उसके उसके। और उसके बाद में उसको राइट मे राइट बी, राइट। अगर आप उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हो तो देयर इज नो नहीं लॉजिक। बोल सकते, बट लॉजिक नहीं होगा भी तो एक्सप्लेन तो काफी लोग नहीं कर पाएंगे। बट मैजिक सोचकर अगर आप यूज कर रहे होंगे तो फायदा है। नहीं, यहाँ पर वी ऑल वर्क ऑन यूनिवर्स, तो मैंने इनको सबको हाँ, यही बताया कि इट्स ऑलवेज यूनिवर्स पे बिलीव करो, एंड इन यूनिवर्स देयर इज नो हाँ, लॉजिक, देयर इज ओनली मैजिक, राइट? सो समवन हाँ। इज आस्किंग, अगर वॉशिंग मशीन हो या फिर वॉश बेसिन हो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू बाकी कोई रेमेडी रिमूव। आप मुझको पूछो, हर चीज की रेमेडी मिल जाएगी आपको। हम्म। अगर सपोज साउथ ईस्ट में भी काफी इश्यूज होते हैं, साउथ ईस्ट का भी अगर कुछ रॉन्ग हो तो हम्म। उसमें मेरे पास सारे रेमेडीज है, लेकिन राइट। नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी है ही नहीं। ओके, तो यू हैव टू क्लीन इट और चेंज द हाउस, उसको हाँ, तोड़कर से बनाओ, दैट्स द ओनली थिंग। इफ अगर ऐसा आपके भी नहीं है कि आपने घर को रूम को लॉक कर दिया और हम लोग वॉशरूम यूज ही नहीं करते हैं तो हमारे को इफेक्ट क्यों आएंगे। काफी लोग है, एक अब मैंने एक वीडियो ऐसी रील्स में आ रहा था, उस वीडियो में देखा तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस आप नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो उसको फ्लश करते जाओ। अरे फ्लश तो हर कोई करता ही है ना। correct correct correct. So another one is, what about the kitchen in किचन northeast? किचन इन नॉर्थ ईस्ट भी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो Okay. काम जो काम आपका टॉयलेट सीट कर रही है वो कैंसर दे रही है आपको। किचन Okay. आपके ब्रेन से रिलेटेड आपको इश्यूज देगा, क्योंकि Oh, किचन जो है वो फायर फायर होता है। और fire. हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, इसमें क्या है वास्तु में, 16 डायरेक्शन तो मैंने बताया। हमारे घर में जैसे 16 डायरेक्शन है, वैसे 5 तत्व है जो हमारे शरीर में भी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स Yes. इसमें भी है, वास्तु में भी। Yes. ये एलिमेंट्स हमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वास्तु Correct. रहने दो चाहे कुछ भी रहने दो। तो Okay. ये एलिमेंट्स में जो वाटर एलिमेंट्स है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। उसमें अगर आप फायर लेकर आओगे तो फायर तो बुझ ही जाएगी और वाटर भी गंदा हो जाएगा, तो Right. दोनों से And इश्यू हो जाएगा। the person will be more aggressive. हम्म मतलब फैमिली में झगड़ा, एग्रेशन, झगड़े लड़ाई झगड़ा अगर आप कर देखो, एक किसी में अगर हिम्मत है सपोज, तो कर देखो, ओ, नहीं है पॉसिबल। घर का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा और डिजीजेस भी आएंगे, ऐसा नहीं है, डिजीजेस तो आएंगे, क्रॉनिक डिजीजेस तो आने ही आने हैं, All आते right. ही है।
So in Northeast, no kitchen, no washroom, no तो dustbin, ये तो है, nothing, no wash basin, no नॉर्थ washing ईस्ट में machine. वो प्रॉब्लम है। बेटर है कि आप नॉर्थ ईस्ट को खाली रखो और नीट रखो. नो That's वॉशिंग मशीन, yes. हाँ बिल्कुल। And don't have और अगर red सपोज आपका color रेंटेड in घर north. है, Hmm. बिल्कुल रेड कलर होना ही नहीं चाहिए। नॉर्दर्न जोन में रेड कलर अंदाजा उतना तो पता होता है कि नॉर्दर्न जोन है, तो मत रखो रेड कलर, जहां तक हो Right. सके अवॉइड करो। Right. Got it. Okay. Yes, Mai, you can proceed. और एक चीज है जो मैंने अभी इसमें नहीं किया, स्टोर रूम जो होता है, कई लोग के नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम होता है, स्टोर Hmm. रूम भी नॉर्थ ईस्ट में एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, इफ एनी केस अभी आप बोल रहे हैं कि रेंटेड हाउस है और हमको सामान रखने के लिए जगह है ही नहीं, तो कोशिश Mhm. करो कि उस जो स्टोर रूम है उसको आप इतना अच्छी तरह से जमा कर रखो कि मतलब कोई भी आए तो गेस्ट भी आने के लिए हम लोग कैसा घर एकदम सजा कर रखते हैं, तो स्टोर रूम को उतना ही सजा कर रखो। और नो रेड कलर, उसमें भी रेड कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, फायर से रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। Mhm. Okay. इवन पिक्चर्स ऑल्सो वर्क। Pictures also should not be there. So no red color in north. नो रेड कलर, Entire north में आपको red color नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके. रेड कलर मतलब वॉल का कलर भी हो सकता है, आपका मैट का कलर हो सकता है, कर्टन्स, डोर मैट, आपका सोफा का कर्टन्स. कवर, आपने अगर सपोज कोई भी कलर 21 डेज तक अगर रेड कलर यूज किया है उस जगह में, या आगे भी मतलब अलग अलग जगह पे कई कई पर कुछ कुछ कलर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो उस जगह पर अगर आपने 21 डेज तक उस कलर को यूज किया तो वो भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। नेगेटिव इम्पैक्ट देगा. ओके, गॉट इट. सो जो भी चैट में लिख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ है, तो her advice is absolutely remove those things. If you have to change the color, color भी change करो, curtains भी change करो, वो color नहीं होना चाहिए. Then so हाँ, north, the preferable color in north is blue, right? Even the floor color. ब्लू कलर, ब्लैक कलर, आप इवन अगर किसी कोई ब्लैक के शौकीन काफी लोग होते हैं, Okay. मेरा मेरा बेटा ही है कि सीढ़ियाँ ब्लैक रखो, ये ब्लैक रखो, ब्लैक रखो, बेडशीट ब्लैक, उसको बहुत पसंद है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में चल जाता है ब्लैक कलर, आप ब्लैक Okay. रखो, ग्रे शेड रखो, काफी कलर से, रेड रेड फैमिली के अलावा और काफी कलर से Blue जो आप यूज कर सकते blue हैं। हाँ, shades, gray shades work, हाँ यूज right? कर सकते हैं। All right. और व्हाइट तो ऑल पर्पज है, कहीं भी चलता है। White ऑफ कहीं व्हाइट भी तो आप चलेगा. लोग, ऑफ व्हाइट में कुछ भी लो, कहीं भी लगाओ चलेगा। Right. अगर वास्तु से हमको रिलेटेड जानकारी नहीं है सपोज आपको, तो आप अपने घर को वाइट ऑफ व्हाइट कर दो Of पूरी white तरह से। color. To be ऑफ व्हाइट safe. मतलब, हाँ, क्रीम कलर भी चलेगा, बेज कलर चलेगा, पूरे घर में कर दो आप। Right. Okay. Okay. Let's move on to next direction. Which one? विच वन? आज तो हेल्थ का इशू है, हेल्थ का ही टॉपिक है, तो हेल्थ Yes. से रिलेटेड ही रहेंगे। और एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से एग्जैक्ट अपोजिट आती है। Okay. Northeast का exact opposite अपोजिट, southwest. साउथ वेस्ट। Diagonally. हाँ, जैसे Okay. हमने बताया कि उनका वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट में जो है वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। पैर होते हैं. Okay. हाँ, वैसे तो Southwest. सारी दिशाओं में अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं वास्तु आपको इम्पेक्ट कर रहा है। कई बार हमें एंग्जाइटी होती है, Anxiety, fear. एंग्जाइटी, Yes. काफी लोगों को एंग्जाइटी होती है कि भाई कुछ हो जाएगा, कुछ होगा तो नहीं, या फिर Yes. छोटी छोटी चीजों में, जैसे खाना बनाते समय या कोई आने वाला है गेस्ट, थोड़ी Right. बहुत और एंग्जाइटी तो ओके, बट एवरी टाइम। हम गूगल करने लग जाते हैं, बॉडी में हाँ, सिम्टम दिखता है तो. Yes. तो एवरी टाइम अगर एंग्जाइटी हो, काफी लोग को रहती है, तो उसके लिए फिर ईस्ट साउथ ईस्ट बोलकर एक जोन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन Okay. अभी जब क्रॉनिक डिजीजेस की बात आएगी तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट Yes. जो है, साउथ वेस्ट में अगर सपोज ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए, Okay. साउथ वेस्ट में हमारे एग्जैक्ट जो सभी लोग गलती करते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में लगाते हैं। Yeah. क्यों लगाते हैं कि जो जानकार लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में जो है भारी रहना चाहिए, वहां पर वजन रखना चाहिए। Okay. वजन से इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको साउथ वेस्ट
थोड़ा हाइट पर रखो, और बाकी जो है वो थोड़ा स्लोप आने दो। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवरहेड वाटर टैंक वहां लगाओ। ओवरहेड सो वाटर टैंक अगर आप लगाओगे तो आपको हम्म हार्ट का प्रॉब्लम आएगा। फिर आपके पास बहुत सारे पेशेंट जमा हो जाएंगे नेहा के पास। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स एवरीबडी डज कि अगर आप छत पर जाओ तो बहुत सारे लोगों के साउथ वेस्ट में ही वाटर टैंक होता है, होता है। होता है। तो व्हाट इज द रेमेडी? यू हैव टू रिमूव दैट पोजीशन, उसकी चेंज नहीं, करनी। उसका रेमेडी है, उसका रेमेडी है। अच्छा, रेमेडी है। ओके, हाँ, व्हाट इज रेमेडी द है रेमेडी? उसका। आपके व्हाट पास कैन अगर वी डू? सपोज, उसको आपको साउथ वेस्ट का जो वाटर टैंक है उसको आपको येलो कलर से पेंट कर देना चाहिए। टैंक पूरा को नहीं, बट टैंक? टैंक, टैंक को नहीं, टैंक के मतलब टैंक सपोज यहाँ पर है तो उसके चारों ओर उसको येलो कलर से, तो टैंक अ, के चारों ओर आपको हाँ, कलर येलो करना है? कलर से कवर कर दो। ओके। सिंपल रेमेडी है, उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है आपको और तोड़ फोड़ भी नहीं है। तोड़ फोड़ की रेमेडी तो मैं बताऊंगी भी नहीं। तोड़ फोड़ करना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। नॉर्थ ईस्ट में तो तोड़ना ही है अगर कुछ है तो। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में हो तो तोड़ना ही है, अगर रेंट का घर हो तो छोड़ना ही है। राइट। बिल्कुल कंपल्सरी। दैट्स अ नाइस टैगलाइन। ओके, तो साउथ वेस्ट में नो ओवरहेड वाटर टैंक। इफ वाटर इट इज टैंक, देयर जस्ट कलर इट, उसके अराउंड आप एक कलर कर दो, दैट इज येलो कलर। येलो कलर। एनीथिंग एल्स फॉर साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट में और एक है जो, हाँ, हाँ, हिल से रिलेटेड तो नहीं है, बट साउथ वेस्ट का जो डोर होता है, साउथ वेस्ट में जो एंट्रेंस होती है, काफी लोग की होती है साउथ फेसिंग हाउस जिसका होता है, कई बार हो ही जाती है। तो वो अगर सपोज उस जगह डोर होगा तो आप धीरे 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 बैंक्रप्सी को चले जाओगे, और पूरी तरह से सब खत्म, लाइफ खत्म, डेथ भी हो सकती है। और डराने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फैक्ट है। तो ओके। अवेयर हो जाना चाहिए इस बारे में, अगर है तो साउथ फेसिंग हमारा घर हो तो आप एक बार चेक करवा लो। तो साउथ वेस्ट में आपका मेन डोर, एंट्रेंस वाला डोर नहीं होना हाँ, चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके। साउथ में साउथ का जो पूरा जोन है, साउथ का जो पूरा एरिया है, उसमें सिर्फ तीन, फोर जो, फाइव जो जोन्स, फाइव जो पार्ट्स है, मतलब पूरे 8 पार्ट्स किए होते हैं, एक एक जोन को हम लोग 8 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो फाइव फाइव पार्ट्स जो है उसमें आप फिर भी एंट्रेंस रख सकते हो, लेकिन उसके बाद में रिमेनिंग 3 में तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। आप घर से टूट जाओगे, अ, आप समाज से बिछड़ जाओगे, समाज आप मतलब समाज से दूर ही हो जाओगे आप, धीरे तो धीरे 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 नहीं है, मेन डोर नहीं है, नॉर्मल डोर है तो चलेगा? लाइक मतलब एक रूम नॉर्मल, मतलब अगर हम लोग ये रूम से उस रूम से उस रूम में जा रहे हैं तो चलेगा। तो चलेगा, मेन एंट्रेंस नहीं चलेगा, हो? मेन एंट्रेंस मतलब वो वाले एंट्रेंस जिसमें हम लोग बाहर जा सकते हैं, घर के बाहर जा सकते हैं घर वैसा के वाला नहीं? बाहर जा सकते हैं। हाँ, गॉट इट। ओके। ओके। सो यस, माय कंटिन्यू। तो वो उस जगह पर भी अगर आपका एंट्रेंस हो तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हो सकते हैं, बीमारी के कारण डेथ्स हो सकते हैं, और पूरी तरह से बैंक्रप्सी आ सकती है। मतलब और हम लोग एक शायद एक इंसिडेंट था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस मतलब कोई गांव राजस्थान का या कहीं का था, पूरे 11 मेंबर एक घर के एक साथ फांसी पे लटक गए थे। राइट, आई शायद थिंक सुना होगा दिल्ली किसी ने। में कहीं हुआ था। आई डोंट। हाँ, शायद पूरे मुझको भी याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन पूरे मतलब छोटे बच्चे से लेके तो घर की जो बड़ी आई बुजुर्ग टोल्ड, लेडी थी। वेरी वायरल इंसिडेंट कि एक ही करके हाँ, सारे लोगों ने फांसी लगा ली थी। एनीबडी रिमेम्बर्स? किसी को याद है? उस घर का जो एंट्रेंस, पूरे 11 मेंबर्स थे, शायद राजस्थान में कहीं था वो, याद नहीं है मेरे को भी। ओके। या इट वाज, बहुत साल हो गए उसको भी है। नो वरीज, आप बताइए। हाँ, तो उस समय जब उनको चेक किया गया वास्तु, तो उनका जो डोर था वो साउथ वेस्ट में था, उनका मेन सीधो एंट्रेंस? मूसा वाला एंट्रेंस। ओके। और राइट। मेन एंट्रेंस शायद जिस भी डोर से हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे घर में अगर 4 या 5 डोर हो और हर डोर से हम लोग बाहर जा सकते हैं, तो आपकी एंट्रेंस हो ही जाएगी।
एंट्रेंस हो जाएगा, वो एंट्रेंस माना जाएगा। हाँ, ओके, अगर बाई चांस हम लोग हमारे घर में है, बालकनी में खड़े, पड़ोस की भी बालकनी है, उसमें से अगर जा रहे आ रहे हम लोग उसमें, तो वो हमारे घर का एंट्रेंस हो जाएगा वो। ओके, तो ये गॉट सब इट। बातों के लिए हमको अवेयर रहना पड़ेगा। सीधू मूसा वाला वो शायद किसी को याद होगा, जिनका मर्डर हुआ था, यस। उनके भी घर में उन साउथ वेस्ट में एंटर था उनका। साउथ और साउथ वेस्ट में पीठ था वेस्ट। उनके, साउथ वेस्ट में अगर पीठ हो, गड़ा हो, गड़ा। ओके। छोटा या बड़ा, कोई भी पीठ, ओके। लाइक सेफ्टी टैंक का या वाटर ओके। टैंक, वाटर टैंक, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक अंडरग्राउंड होता है ना, वाटर टैंक होता है, हाँ, वो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। ओके। और किसी वजह से कोई हम लोगों ने गड़ा हो, तो बोर भी नहीं होना चाहिए, तो भी उसको भी क्लोज करना ही बेस्ट है। का जो पानी हम हाँ, चढ़ाते हैं टैंक में, तो वो भी नहीं हाँ, होना चाहिए। ओके। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस। ये तो हो गई इसकी बात। और जो दूसरी कई जो चीजें होती है, जैसे हमें हेल्थ से रिलेटेड, मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े नहीं, लेकिन ऐसे कि जो वेरेबल नहीं होते, जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, बॉडी पेन, वो भी कहीं ना कहीं वास्तु से अगर आप उसको रिलेट रिलेट कर लोगे, तो उसका कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा उसको। ओके। जैसे लगातार, मेरी एक क्लाइंट है जिसको लगातार 3 साल से खांसी थी। खांसी। अब, हाँ, ओके। मतलब इतनी ज्यादा कि उनके लंग भी, मतलब ब्लड आया था 1 या 2 बार, खांसी की वजह से, मुंह में से। ओके। और ओके। जब भी इलेक्ट्रोल टेस्ट करवाते तो उसमें कुछ भी नहीं था। ओके। कई बार उन्होंने टेस्ट करवाया, और उसके बाद में मतलब उनको आदत हो गई, अब चलो, खांस रहे, चल रहा है उनका, लाइफ ऐसे ही चलना शुरू हो गया। ओके। डॉक्टर्स बोल रहे कुछ भी नहीं है, कई लोगों ने बोले कि शायद एक्टिंग कर रहे होंगे, ऐसे कैसे हम्म। आती है, डॉक्टर तो कुछ भी नहीं है बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने, मतलब उन्होंने उस इश्यू के लिए मेरे को नहीं बुलाए थे। उनके पास में दूसरा इश्यू था कि उनकी डॉटर इन लॉ जो थी, उनको कंसीव नहीं हो पा रही थी, 5-6 इयर्स हो गए थे। तो उसके लिए उन्होंने मुझको बुलाया था। तो मैंने उनका घर का मैप देख कर मैंने बोला कि उनके घर में ब्रह्म स्थान के पास में वॉशिंग मशीन थी। ब्रह्मस्थान ब्रह्म मतलब नाभि है इन द सेंटर ऑफ योर हाउस? सेंटर सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान से जस्ट हट के थोड़ा सा एक वॉल था वहां पर, उस पे वॉशिंग मशीन थी। तो मैंने ओके। कहा कि कब से है? तो बोला 3 साल से। मैं बोला आप खांस रहे हो, आप कब से खांस रहे हो? तो वो बोले 3 साल से। 3 साल तो से। इमीडिएट फिर उसको रिमूव करवाया। और फिर उसके बाद में हम लोग अगर रेमेडी अगर कर रहे होंगे, तो रेमेडी का असर होने के लिए भी टाइम लगेगा। आपको 6 घंटे से 6 महीने तक भी टाइम लग सकता है। ओके। तो तो उनकी वो भी खांसी। नोटिस करना चाहिए। उनकी खांसी एक 15-20 डेज के बाद में कम हो गई, धीरे वाह, धीरे ग्रेट। धीरे अब कम हो गई, अभी तो काफी कम हो गई। तो ब्रह्मस्थान विच इज द सेंटर ऑफ योर होम, वहां पे भी हाँ, आपको स्पेस खाली रखनी है, कुछ नहीं रखना? रखनी है, ओके। खाली ही रखनी है। तो आप हल्का फुल्का फर्नीचर रख सकते हो। अब हर प्लेस अगर आप खाली रखोगे तो भी घर है, या। रखना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। रख सकते हो यस। बट भारी मत रखो, हल्का फुल्का रख सकते हो। लाइक डाइनिंग टेबल रख लो आप, कुछ वैसा रख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ओके। ओके। और All किसी right, को so कुछ I क्वेश्चंस hope you are कुछ all पूछना है? taking the notes. Give me a thumbs up कि अगर आप लोगों। Yes, perfect. Thank you. Yes. Yes, Mike, continue. कुछ है, कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन है हेल्थ Yeah. से रिलेटेड? Can I ask? Yes, yes, please, please ask. That mapping of the house is to be done. So mapping as a whole to be done, or each room also is to be done? होल होल Whole. Because होल। of course we don't have anything in northeast if we take as a whole, but individual हाँ, bedroom if we check, then there is a toilet on the northeast. ओके। ओनली, मतलब पूरा घर का जो है, आपको हम्म, सिर्फ उसका ही मैपिंग करना चाहिए। ओके, ठीक। वैसे तो वो हर क्या रूम में नॉर्थ ईस्ट करोगे? में कुछ ना कुछ होगा ही होगा। हाँ, वो तो हो गई। का नहीं करवाना है, हाँ, आपके पूरा घर का घर का करवाना है। Spine के Okay, लिए now you were telling something pain in spine. My wife has हाँ, always pain in spine. So what can be the reasons?
मे बी आपके मतलब कैसा होता है, स्पाइन में अगर पेन हो हम्म तो मर्म स्थान, किसी ने सुना है या नहीं पता नहीं। मर्म वास्तु स्थान तो हार्ट मर हार्ट होता है बेसिकली। नहीं नहीं, मर्म स्थान मतलब वास्तु में मर्म स्थान जो होता है, जो वास्तु पुरुष का जो लेटने का जो पोजीशन होता है ऐसा क्रॉस, हम्म तो उस क्रॉस एरिया में अगर सपोज किसी एक वॉल पर कोई कील आ गई, ओके हाँ, तो उसके वजह से वहां पर पेन हो सकता है रीढ़ की हड्डी हम्म में, क्योंकि उनकी ओके रीढ़ की हड्डी उसी पोजीशन में होती है। तो हम्म अगर आपके पास में कहीं कील हो तो उसको आप हम्म रिमूव कर मतलब जो भी पिक्चर वगैरह टांग रहे हो उसको आप स्टिक स्टिक के वो रहते हैं ना स्टिकर्स के, राइट उसके थ्रू आप लगा लो हुक्स के। ओके कील कील निकाल मत देना। ही लगो, हाँ कील निकाल दो। अगर देखो आप, अगर उसमें से कील निकालने के बाद में कुछ इफेक्ट होता है क्या। मैम ओके किस तरह कहाँ बोला आपने कील निकालने के लिए? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के पूरे एरिया में। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के पूरे एरिया में दीवारों में हाँ अगर कहीं कील है तो? हाँ, अगर किसी दीवार में कोई कील हो तो ओके, नॉर्थ तो ईस्ट भी साउथ। स्पाइन का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। आई ओके। थिंक वो प्लग पॉइंट्स के स्क्रूज हैं, भाई कील तो कोई नहीं है। नहीं, प्लग पॉइंट के स्क्रू तो ओके, वो तो होते ही है, ओके In case लेकिन of staying in a flat, what is the situation then? In people are keeping some heavy stuff on the northeast. Northeast should be empty, Ajanta ji. No, Ajanta. that is what I'm asking because we stay in a flat. So people, those who are keeping things like heavy things just on the top, like for the people, those तो who are staying on top. आप अगर फ्लैट में रह रहे हो तो आपको इसका इम्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि Okay. आपके अकेले का नहीं है ना, वो सभी का है। इसमें ये एक चीज भी रहती है, हाँ. साउथ वेस्ट के वाटर टैंक के बारे में जो मैंने बोला है ना, Hmm. अगर कई लोगों के बीच में अगर वो डिवाइड है तो उसका Hmm. इम्पेक्ट आपको नहीं होगा, तो उसमें Okay. उतना डरने का कुछ भी नहीं है। ओके, ओके Oh. हमारा लेकिन भी हमारा फ्लैट है। इंडिविजुअल हाउस हो तो होगा। So, Ajanta, your home is just where you are staying. Whoever is doing something on above you or below you, it will not impact you. But the main door remains the same. No, that is why I'm No, the asking. main door is your main door only. Now, Where enter no, your for flat, example, the series in which we are staying, the door is in the southwest. So that is the reason. acha, to enter into your flat, it is southwest. Yeah, and in that Not the series. entire building. Not the entire building. No, Your no, flat. no. It is the entire series of the building. It is या in बट same direction. ऑल तो फ्लोर्स वो आपको ऑफ इम्पेक्ट द नहीं करेगा, अच्छा, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा ना। होंगे छोटे मोटे इश्यूज होंगे उतना, अच्छा. लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ओके, बट क्योंकि माय हाउस, वो जो बट माय सीरीज में जो सीरीज में आ रहा है सबका साउथ वेस्ट में ही डोर है. हाँ, लेकिन हमारा अगर आपका खुद का साउथ वेस्ट में डोर हो वो चेक कर लीजिएगा। okay, my house has slight southwest, not very. It is in the south, but the entrance door is in the. I'm in a flat. It is slightly southwest. So is that a problem? हाँ, तो आपने मैप के थ्रू देखा है। My son saw from a compass. compass से देखा भी. हाँ हाँ हाँ, Then it's an South. issue. Then it is an issue, Sana. Slight also it impacts. Southwest. आप कितने साल से रह रहे हैं वहां पर। ever since मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ 3 महीने पहले मैं शिफ्ट हुई हूँ में, मेरा हाँ खर्चा बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. हाँ, नहीं बैंक से तो आपको आनी ही है अगर साउथ वेस्ट में होगा तो। ओके, ठीक ऐसे है. मतलब एकदम नहीं आ जाएगी, बट धीरे 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 वो आपको इम्पेक्ट करेगी। बट हो रहा है. आप Yes, Sana. के पांच जोन So what can be done? You have to change the flat then. नहीं, आपको पहले फ्लैट चेंज करने से पहले एक बार ना पर्टिकुलर मैप बनवा लीजिए आप। और चेक मैप शायद आपके बिल्डर के पास तो होगा है ना, वो देगा आपको। होगा ठीक हाँ, है. उसको ग्रेडिंग करवाने के लिए कुछ ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब हम घर में रहते हैं तो वहाँ वो जो डोर जिसे हम एंटर हो रहे हैं वो साउथ वेस्ट में. हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, सना. ओके, पांच अलाउड नहीं है, 3 अलाउड है। 3 कौन से अलाउड है साउथ वेस्ट के? साउथ वेस्ट जो एक जोन है, मतलब साउथ को जो है हमने 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 एंड S8। तो S6 से लेकर S8 तक का जो एरिया है
और इवन W1 मतलब वेस्ट का भी छोटा सा पार्ट उस जगह पर ना हो एंट्रेंस। No. Okay. तो साउथ वेस्ट का मतलब ये है कि साउथ और वेस्ट का मिलन। Correct. Right. पहले ये सारी I share the map that you gave to me so that इनको थोड़ा और better समझ में आएगा. Can I share that? आपने जो मेरे घर के लिए मैप बनाया था ना, हाँ Can I हाँ share that? हाँ Okay. शेयर करो, आप एक बार शेयर करो। हाँ. Yes, Sana, you can ask. But I'm saying that now that I moved to another new house, नहीं नहीं, आप इतना गड़बड़ भी मत करो, एक बार हम लोग ग्रिड करवा कर देखेंगे आपको, मैं आपको। अच्छा ठीक है, तो मैं मैप बनवा लूँ और हाँ फिर आपसे कांटेक्ट करूँ। हाँ, आप अपना मैप वो बिल्डर के पास होगा आपके पास में। ओके ओके ठीक है हाँ, उनसे मांग लो, मैं ग्रिड कर कर आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक अगर यू। प्रॉब्लम हो तो ही आप शिफ्ट करो ना, नहीं हो तो क्यों करोगे। करेक्ट करेक्ट। हम सब लोग में जिनको ब्लड प्रेशर की या किसी एंजाइटी जैसे फियर वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसका हाँ। मेन कॉज वास्तु। तुम क्यों कर रहे हो? लेडीज में ब्लड प्रेशर का तो एक रीजन वही है जो मैंने बताया, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर किचन हो। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट में किचन बोलते हैं हमको, लेकिन अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में थोड़ा सा ईस्ट का हिस्सा और थोड़ा साउथ ईस्ट का, ये दोनों मिलाकर ईस्ट साउथ ईस्ट होता है। उस जगह अगर किचन हो तो लेडीज को डायबिटीज और मोस्टली लेडीज को होती है, ओके और बीपी का इशू, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। उसका सॉल्यूशन है, उसका मतलब उसको तोड़ना है या घर छोड़ना जरूरी नहीं है, तो क्या सॉल्यूशन हो सोल्यूशन? जाता है। सोल्यूशन है मैम उसका? उसका सॉल्यूशन में आप मेरे को आपका एक बार मैप देखना पड़ेगा, और जो उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी जो प्लेटफॉर्म कलर है, हाँ, क्या Kitchen. होगा? किचन प्लेटफॉर्म, ओके, व्हाट कौन कलर? सा कलर या होना चाहिए मैम? हाँ, उसको ग्रीन कलर होना चाहिए। ग्रीन। ग्रीन। हाँ, अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन का बर्नर है और बर्नर के नीचे अगर ग्रीन हो तो उसका इश्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन बर्नर अगेन के ब्लैक नीचे हो या तो बस है क्या? पूरा नहीं, अगर काउंटर अगर आपका काउंटर कौन सा कलर का है वो भी मैटर करेगा। मेरा ब्लैक। ग्रेनाइट है, ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है साउथ ईस्ट में, तो उसको क्या कर अच्छा, सकते? कलर पेंट कर उसको दे। आपको चेंज करना पड़ेगा। वो तो कंक्रीट होता है, ऑलरेडी लगा हुआ है मार्बल उसमें। हाँ, वो, और मेरा तो घर ही नहीं, मैं तो किराए से रहती हूँ यहाँ। किराए से नॉर्थ रहते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किचन में तो ब्लैक पेंट करा चलेगा? सकते हैं अपन। हाँ, उसको आप स्टिकर्स लगा सकते हो, मिलते हैं स्टिकर्स उसके, हाँ, टेप जैसे कर। हाँ ग्रीन कलर की जैसे फ्लोरिंग मैट्स हाँ मिलते हैं, ऐसे हाँ हाँ, पूरा लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ओके ग्रीन आप मतलब कलर अगर मैटर कर रहा हो तो लाइट पिस्ता कलर, ग्रीन की फैमिली कौन सी भी लगा सकते हो। ठीक है। अगर But हम not ये तीन ये थिकनेस का अगर मार्बल स्टोन या ग्रेनाइट का मिला तो उसके ऊपर ही हम रख सकते हैं ना? हाँ, रख We सकते can Correct. just keep it above the same हैं। granite हाँ counter. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। विनाइल शीट्स Okay. भी आते हैं, जावेद आजकल जी विनाइल शीट्स भी डाल सकते हो। समथिंग, जावेद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Actually, my house is there and front side lawn is there. ओके. Then what will be the constructed area we have to see or the total boundary wall? टोटल. लॉन ओपन टू स्काई है लॉन आपका, मतलब Yes. ऊपर छत है या नहीं है? No, lawn is there. The front side lawn is there. No, nothing. हाँ, It is मतलब तो lawn and green. आपके ना 2 ग्रिड बनेंगे। जी हाँ, तो 2 ग्रिड बनाना पड़ेंगे आपके मैप के। एक ग्रिड में जो होगा आपका लॉन के साथ में पूरा घर का बनाएंगे, उसमें आपका जो जी मेन गेट होगा लॉन से पहले, वो जी गेट मैटर करेगा, मीन्स घर वो का भी गेट पॉजिटिव जोन में आ जाए। मेन जो आपका घर का जो गेट होता है ना, दो जिसमें हम गेट लोग हो गया, एक वेंटिलेटर, कंस्ट्रक्टेड एरिया का गेट, एक लॉन के मतलब सड़क से हाँ घर में आने का गेट। हाँ, तो सड़क से घर सड़क में से जो घर आने में का आने गेट का है, गेट तो साउथ ईस्ट में है मोस्टली। हाँ, लेकिन जो पॉजिटिव जोन्स होते हैं ना, तो वो हर मतलब हर एक जोन पॉजिटिव नहीं होता है, ओनली 8 जोन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, या बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो उसको फिर ट्रीट करना पड़ता है, एक्सेप्ट साउथ वेस्ट का डोर ट्रीट नहीं हो पाता है। नो, मेन गेट जो घर में सड़क से घर में आने का गेट है वो तो साउथ ईस्ट में मोस्टली है। हाँ, तो साउथ ईस्ट में तो आपको ना, साउथ ईस्ट का जो गेट होता है, अगर जी एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में आप बता रहे हो जैसे, जी तो मैं मान रही हूँ कि आप मतलब करेक्ट परफेक्ट बता रहे होगे, तो साउथ ईस्ट का जी गेट आपको फिर एक्सीडेंट्स दे सकता है, या फिर आपके जो कैश का जो प्रॉब्लम है वो दे सकता है, मनी प्रॉब्लम।
अगर आपको No, this प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं तो आपका गेट साउथ ईस्ट में नहीं होगा, फिर थोड़ा इधर उधर होगा। actually this house we are staying last roughly around 60-70 years. This is constructed by my हाँ, father. We are there तो for 70 years. तो प्रॉब्लम्स नहीं आए तो इसका मतलब आपका घर में वो साउथ ईस्ट में नहीं होगा, थोड़ा हटके होगा, मतलब No, पॉजिटिव cash जोन में होगा। flow, you can say cash flow means we are a average family. We are not a very rich family, but anyway, otherwise there is no problem. हाँ, तो नो प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आपका फिर वो पॉजिटिव ही होगा। Oh, positive. अगर आपके Oh, घर में बार बार एक्सीडेंट्स हुए होंगे पहले से, no, तो no. तो इसका मतलब कि Ex- आपका गेट पॉजिटिव ही होगा। Okay, okay, ma'am. मैम हाँ Thank मैम। you. मैम एक्चुअली मेरे घर में मशीन तो मैं हटा दूं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से, लेकिन जो बेसिन है जिसमें हाथ धोते वो वहां पर है, तो उसको क्या कर सकते हैं? यूज करना बंद कर दे या फिर उसको तो हटा नहीं सकते? आप उसको यूज करना बंद कर दो, मतलब नॉर्मली मतलब हाथ बिल्कुल धोने के लिए भी नहीं, जैसे खाना नहीं खाया और नहीं, उसके बाद हाथ धोने के लिए? ओके। बंद कर दो, अवॉइड कर दो उसको यूज करना। एंड वहां पर जो फ्लोर है वो हमारा रेड है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है और उसमें पूरे में रेड फ्लोर ही है, मतलब पुराने हैं ये। तो आप उसको रेड मतलब जो ग्रीन या ब्लू मैट से कवर कर लो, बेस्ट सॉल्यूशन है ना। मतलब वो एंड उस मैट मैट ऐसा कवर करो कि वो विजिबल ही ना हो, ओके परमानेंट ओके। मैट आप लगा लो उसमें। अच्छा। और ये जैसे कि पुराने क्वार्टर से, इसमें ऊपर टाड़ बने हुए जो पहले के घरों में होते थे, एंड वो मतलब हमने कुछ सामान तो वहां रखे, क्योंकि पुराने क्वार्टर से स्टोर रूम वगैरह ये सब बना हाँ नहीं हाँ। है, मतलब गार्डन बहुत बड़ा सा दिया है, इट्स अराउंड 4000 स्क्वायर ये स्क्वायर हम्म, फीट दिया है, लेकिन इसमें ऐसी नो पहले का है तो उस तरीके से दिया नहीं इंटीरियर। अच्छा तो जो हमने टावर पे जो सामान रखे, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत बहुत थोड़े से कुछ नो जो बर्तन हमने पैक करके रखे जो यूज नहीं होते नए वाले, अच्छा। तो उनको हाँ हाँ, हटा देना वहां से। तो आप अगर उसको नीट कर रहे हो, मंथली उसकी क्लीनिंग कर रहे हो तो ओके, लेकिन मेक श्योर कि वहां पर रेड कलर ना हो, रेड फैमिली का कोई भी कलर ना हो। ओके। हाँ, हाँ मतलब All कभी right. कई बार क्या होता है कि मैरिज के कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, कोई बुक होती है रेड कवर की, इवन जो हमारे महाभारत रामायण या जो भी होते हैं उसको रेड कलर से हम लोग उसको रेड कपड़े से बांधते हैं, वो भी मना मना है, मत करो। ओके। और हमारा जो एंट्रेंस है वो साउथ में है, अगेन इट इज गवर्नमेंट क्वार्टर ओनली, यहाँ सारे हाँ एक सीरीज से सबके साउथ में है, लेकिन वो साउथ मींस नॉर्थ, सॉरी ईस्ट के बाद जो साउथ पड़ता है उसमें है, वेस्ट साइड में नहीं जाता है, स्टार्टिंग में ही है, नॉट वेरी अच्छा स्टार्टिंग अच्छा। ऑल्सो, लाइक 6 हाँ फीट आप छोड़ दीजिए स्टार्टिंग से, ईस्ट से 6 फीट छोड़ के तब है हाँ, अच्छा अच्छा। एंट्रेंस। तो तो आपको कुछ इश्यूज हैं मनी से रिलेटेड, मतलब नहीं, मनी खर्च कैश होते फ्लो रहते नहीं है घर हैं, में? लोन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ खर्च होते रहते हैं। ज्यादातर मेरा जो बड़ा बेटा है 11 साल का, उसके पीछे काफी खर्च होते हैं, वो बहुत हाँ, सामान लेता है थोड़ा अननेसेसरी सा। अनवांटेड खर्च होना ये भी उसी का है हाँ यही है, नतीजा। मतलब पैसे रहते हैं लेकिन खर्च भी होते रहते हैं। हाँ, आई एग्री तो मैम। पैसे आएंगे आपके पास लेकिन वो खर्च भी हो जाएंगे, हाँ, और लेकिन वो मतलब ऐसी एंट्रेंस का जगह पे क्या कर खर्च होगा सकते कि हैं? वो उससे आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, हाँ ये हमारे साथ कई सालों से हो रहा है। ये होगा तो होगा आपको। तो मैम हम अपने घर का मैप बना के अगर आपको भेजें तो आप बता पाएंगी ना कि इसमें क्या जी क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिकॉज साउथ की एंट्रेंस में कुछ रेमेडी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। इट्स नॉट साउथ ईस्ट, मतलब साउथ है, साउथ के मिड से भी पहले है, जो तो स्टार्टिंग से ईस्ट, होता है ना, मे बी आगे चलते ईस्ट हैं साउथ वन ईस्ट टू होगा। नंबर। एंजाइटी है क्या घर में किसी को? थोड़ा आ, सा रहता है, नॉट मच। मुझे मुझे ऐसे थोड़े कभी कभी पैनिक्स ऐसे होने लगता है, हाँ, और मुझे मतलब लगता है कि पर्टिकुलर जब मैं हर किसी नहीं। को नहीं होता है, किसी एक पर्सन को होता है। अगेन हाँ हर किसी को नहीं होगा। कई बार ऐसा है कि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, जैसे स्टार्स रहते हैं, हमारे स्टार्स अच्छे हो तो कुछ भी नहीं होता है तो बाद में, व्हाट शी लेकिन मीन्स इज कि अगर आपके घर में कुछ इश्यू है, मतलब वास्तु से सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर फैमिली मेंबर को इश्यू होगा। देयर कैन बी वन पर्सन हु इज सफरिंग मोर, एक पर्सन पे उसका ज्यादा असर हो सकता है, राइट? तो उसका कुछ रेमेडी कर सकते हैं उस एंट्रेंस का? हाँ बिल्कुल है, रेमेडी है उसका। पहले आपको मैप बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास मैप है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास भी हमारी टीम है, वो आकर आपको मैप बनवा के भी दे सकते हैं।
मिनिमल रहता है, उसका भी कुछ चार्जेस ज्यादा नहीं रहते हैं। बट यहाँ पर सारे लोग के घर मतलब एक लाइन में जो है सभी का सेम क्वार्टर से गवर्नमेंट क्वार्टर सेम बनते हैं, लाइक मिरर मिरर इमेज होती हाँ है हाँ हाँ हाँ, वो सेम दैट बनती है। इज। तो यहाँ सारे का वैसे ही है, सबके साउथ है, या फिर एक एक लाइन है नॉर्थ की है और दूसरी लाइन है साउथ की है, हाँ हाँ, सभी के ही ऐसे हैं। तो सभी सभी को लोग होंगे प्रॉब्लम, लेकिन कोई दिखाएगा कोई नहीं दिखाएगा आपके पास में ना, किसी को राइट। मतलब एंड दिखाएगा ज्यादा कोई पेड़ कोई पौधे नहीं। रखने से क्या कुछ सोल्यूशन होता है? क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत सारे साउथ मतलब है में बनाना साउथ ट्री। में पेड़ पौधे रखना बिल्कुल मना है, साउथ में मत रखो। अच्छा, गार्डन में तो पूरे पेड़ है, लाइक नो बनाना ट्री है, आंवला हम्म, का है, अनार का है, सारे कुछ है, सारे मतलब आम जितना के पार्ट में आपका ईस्ट कवर हो रहा है उतने पार्ट में आप रख लो। Flower pots, सो फ्लावर south, पॉट रख सकते हैं। flower ममता, pot इट which इज is लाइक good आपके for हाँ जो south में पेड़ जाता है। है, ह्यूज हाँ, ट्रीज आप जो बात कर रहे हो, वो आपके घर में ही आते हैं या फिर इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी? दैट गार्डन ऑल्सो। हाँ, गार्डन। गार्डन हमारा अपना है, सबके अपने अपने गार्डन है। ओके, देन इट विल बी, यू हैव टू चेक देन। ओके। साउथ ईस्ट का आपको डोर चेंज करने की जरूरत नहीं है। साउथ आप अगर सपोज कोई भी एक नेगेटिव एंट्री है, वो नॉट ओनली साउथ ईस्ट ही, बाकी भी साउथ वेस्ट के अलावा इवन नॉर्थ ईस्ट में भी जो एंट्री होती है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने इतनी बातें की लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एंट्री के बारे में बात नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री होती है, तो वो मतलब यहाँ साउथ में तो काफी चलता है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री सबसे अच्छी होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बुरी होती है। वो इसलिए बुरी होती है कि आपके पास में काफी अमाउंट आ जाएगा, काफी पैसा आएगा। हाँ, अगर सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कुछ है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन फिर 3 लाख के आपके खर्च भी हो गए, आपके पास कोई सेविंग नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर मेन एंट्रेंस डोर है तो वो तो, हम लोग ओके, लेकिन तो उसके नॉर्थ लिए इस रेमेडी पॉइंट पे आई है, विल, नॉर्थ ईस्ट में ये एक रेमेडी है। yeah, I will share my map, my, so that they can, have a better understanding. हाँ तो मेरे हाँ, नेहा का घर, घर का जो नॉर्थ ईस्ट में ही एंट्री है। यस, इफ यू कैन सी माय एरो मार्क, एवरीवन कैन यू गिव मी थम्स अप कि मेरा एरो मार्क आपको दिख रहा है, राइट? परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं N8 एंड N7, राइट? है ना माई, यही है ना? हाँ यही यही। N8 and E1, हम्म, right? If you see, this is the door and this is my main door in my ये house, right? So एग्जैक्ट स्टेप्स के पहले। yeah, so this is how she does a gridding of the map, and this is how you see this E1, E2, E3, E4, ये सारा मिलाकर आपको ये ग्रिडिंग करके समझ में आएगा कि क्या है। ओके, सो दैट वे अगर आप ये अपने घर का प्लान पे आप ये मैप कर सकते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग इन ए मच मच बेटर वे एंड यू कैन कम अप विद बेटर रेमेडीज। सो हियर इफ यू सी, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, इसका बैंग ऑपोजिट होगा S8 एंड W1 विच इज साउथ वेस्ट, हाँ, राइट? इस जो पूरे एरिया में इस जगह पे मैंने बताया था कि कील ना हो। कील ना, ओके, दिस हाँ, एरिया। अगर किसी को इश्यू आ रहा है तो एक बार आप चेक कर ले सकते हो कि कुछ कील तो नहीं है वॉल्स में। ओके, our entrance is E3, E4. हाँ, काफी बहुत अच्छा है, E3 Okay. E4 बहुत अच्छा एंट्रेंस है। but Hmm. Arun, E3 pinpoint that this is your E3, E4. You have to do Actually, it is one software. compass shows about 60 degree, one shows 80 degree from north, so towards east. Hmm. Mine Okay. is S3 S4 S3 S3 S4 किसकी है? मेरा S3 S4 एंट्रेंस है। अच्छा रहता है, S3 S4 का भी अच्छा है। आपने मैप से देखा है या कैसे देखा है? आपका अभी जो मैप नेहा ने दिखाया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे अपने घर का पता, इफ आई डिवाइड इट इन 8 तो वो स्टार्टिंग के मतलब S3 S8 S4 आएगा। आई थिंक ममता वैसे हम नहीं कर सकते वैसे बिकॉज आप नहीं कर पाओगे, आपको मैप गूगल अर्थ के थ्रू तो भी आप मैप बनवा लो, कर लो, ग्रेडिंग करवा लो। अगर आपके पास मैप है तो आप मुझको भेज दो, मैं ग्रेड करवा कर दे दूंगी आपको। मैडम, वो नॉर्थ वेस्ट में किचन में ब्लैक प्लेटफॉर्म है, उसको कुछ चेंज करना है कि वो रह सकता है? नॉर्थ वेस्ट में किचन है, ब्लैक प्लेटफॉर्म चलेगा नॉर्थ वेस्ट में, Okay. बट नॉर्थ वेस्ट में किचन ही प्रेफरेबल नहीं है।
अब उसका तो कुछ नहीं अ, कर सकते। हाँ तो मेरा भी उसमें है। आप ब्लैक प्लेटफॉर्म तो चल जाएगा वहां पर, लेकिन जो हम्म बर्नर होता है ना, बर्नर हम्म के नीचे आप येलो जैसलमेर का जो टोन आता है वो लगवा लो, ओके या ओके, फिर कलर करवा लो। वो तो कर सकते हैं, मैट नीचे लगा हाँ, सकते हैं। बर्नर के नीचे, एग्जैक्ट बर्नर के नीचे आप हमारा कलर वाइट करवा लो। बर्नर तो एक्चुअली हमने रखा हुआ टुवर्ड्स ईस्ट में, किचन के ईस्ट अगर में। आपके पास हॉब हो तो नीचे भी करवा सकते हो। हब नहीं है क्योंकि बर्नर ही है, ठीक है वो चेंज कर दो। हाँ, तो बर्नर के नीचे आप येलो कलर का हम्म स्टोन या तो पत्थर लगवा दो येलो कलर का, या फिर कलर, नहीं तो कोई ओके शीट। ओके। वाइट बट कलर नॉर्थ कर वेस्ट का सकते कोई हैं। रेमेडी है किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो? नॉर्थ वेस्ट में किचन का रेमेडी मतलब होना लेकिन चाहिए। आपका एक बार आपको चेक करना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ 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 वेस्ट नॉर्थ का किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के की स्लाइड बाजू ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है। नहीं, वेस्ट की साइड है नॉर्थ के, कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट ही है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में किचन हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन हो तो सभी तो एडल्ट है यहाँ पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। और तो कुछ नहीं है ना, अब तो बुढ़े हो गए सब लोग। मैम एक और डाउट है। हाँ मैम। आई स्टे इन अ फ्लैट, सो हाँ वो फ्लैट का जो कॉरिडोर है ना, उसके बाद एक बड़ा सा गेट है। सो ईच फ्लैट इज हैविंग अ सेपरेट गेट। हाँ हाँ। गेट के बाहर वी शुड नॉट पुट एनी दुश्मन, ये गणेशा का आइडल या नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, हैंगिंग। बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी नहीं, आइडल का मत, हाँ, यू शुडंट पुट, राइट? बट मैडम बिल्कुल नहीं। बोलते हैं पांच पंचमुखी हनुमान जी के एंट्रेंस पे लगाने से नहीं सब नहीं, ठीक हो जाता है। किसी भी भगवान को आप अपने घर में, आप अपने घर के अपने फादर को, ग्रैंडफादर को दरवाजे पर नहीं बिठाओगे ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो वो, गणेश का ये जो वॉल हैंगिंग जो आता है ना, वी हाँ शुडंट पुट नहीं दैट। नहीं, बिल्कुल नहीं। गेट और के सबसे बड़ी बाहर है बात तो वो मास्टर। तो पुराणों से आ रहा है कि गणेश को पार्वती ने डोर पे बिठाया और बड़ी लड़ाई हो गई। तो अच्छा, अगर जिसके भी घर में गणेश हो बाहर, तो फादर और सन में बहुत लड़ाई होती है। फादर मतलब और सन में। हमेशा, हाँ, बहुत झगड़ा ओके। होता है या फिर डिस्प्यूट रहता है, हमेशा रहता है। तो आपको अगर गणेश ही हम्म, लगाना है या पॉजिटिविटी हर किसी को चाहिए, तो सबसे बेस्ट रेमेडी गणेश का ही यंत्र है, स्वास्तिक। क्या? स्वास्तिक 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 लगा लो आप। स्वस्तिक, ओके। हाँ, वो गणेश का ही ओके, ये रहता है यंत्र। और कुछ भी लगा सकते हैं अदर देन गणेशा? कोई भी सिंबल्स भगवान का लगाओ, नहीं डर, भगवान भगवान के का नहीं। सिंबल लगाओ, भगवान के सिंबल से, स्वास्तिक है, ओम है, स्वास्तिक लगाओ आप। अच्छा स्वास्तिक तो बहुत पॉजिटिव होता है, और गणेश का तो प्रतीक है स्वास्तिक, तो आप लगा सकते हो। अच्छा, ओके। मैंने कहीं पढ़ा था इसको, एंड रिसेंटली आई पुट इट आउट ड्यूरिंग दसरा, देन आई रियलाइज आई जस्ट वांटेड टू चेक विद दैट। हाँ नहीं नहीं, आपको गणेश नहीं लगाना है। ये राजस्थान में काफी है कि राजस्थान में कहते हैं कि सामने गणेश लगाओ, और उसके पीछे भी फिर एक गणेश, मतलब वॉल के वो साइड एक गणेश, घर के अंदर एक गणेश। आ, उसका रीजन क्या बताते हैं गेट वो लोग के, कि, हाँ हाँ, बोलिए यस मैम। मैम, यस। गेट के अंदर, मेन डोर के बाहर पूरा घर हमारा ही रहता है ना, हाँ, उसके वहां भी ओम या कुछ लगा सकते हैं ना? ओम लगा सकते हैं आप, ओम लगाओ, आप स्वास्तिक लगाओ। आप घर में 16 जोन्स में स्वास्तिक लगाओ, चलेगा। अच्छा, मेरे तो खुद के घर में अंडर कंस्ट्रक्शन में हमने पूरे स्वास्तिक अंदर, मतलब प्लास्टिक में ही लगवा दिए अंदर। स्वास्तिक बहुत अच्छे होते हैं, आप लगा सकते हो। अच्छा। एक्सक्यूज मी मैम। यस नेहा। हाँ, मुझे पूछना था, हमारा नॉर्थ ईस्ट में पार्किंग है, देन उसके बाद एंट्रेंस है, तो बट पार्किंग के ऊपर ही बेडरूम है, तो वॉशरूम है वो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में, बट नॉर्थ साइड में है वॉशरूम, तो चलेगा क्या? वॉशरूम एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नहीं है, बट पार्किंग के ऊपर है बेडरूम, अच्छा। बट वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, बट इन हम्म। बिटवीन है, वेस्ट और ईस्ट के बीच में, तो चलेगा? बट नॉर्थ हाँ ईस्ट में। मैम, इसके लिए ना आपको मेरे को मैप दिखाना ही पड़ेगा, हम्म, क्योंकि वॉशरूम्स ना
हर जगह पे नहीं लगा सकते। ओके। वॉशरूम्स के लिए सिर्फ एक ही दो देवता होते हैं, भृंगराज, जैसे पहले भंगी भंगी बोलकर बोलते थे क्लीनिंग करने के लिए हाँ जो आता था, तो वो हाँ। उनका जो प्लेस होता है उस जगह पर लगाते हैं। और एक जो प्लेस होती है वो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट से पहले होती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलकर, तो उस जगह पर भी एडवाइसेबल है वॉशरूम। वो जो कोप भवन बोलकर वो एक प्लेस होता है जिसमें हम लोग अगर सपोज कुछ ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, तो एक 15-20 मिनट 1 आवर का टाइम उस जगह पर हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो उस जगह पर वॉशरूम बनाना एडवाइजेबल है। वैसे कौन सी दो या जगह पर तीन मैम? ही है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलकर है, जो बट नॉर्थ इन वेस्ट से पहले बिटवीन है आती तो? है। नॉर्थ अच्छा वेस्ट से एग्जैक्ट पहले और वेस्ट के बाद में। अच्छा। तो उस जगह पर आप वॉशरूम रख सकते हो, लेकिन बाकी जगह अगर वॉशरूम हो, अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं है और कहीं भी है तो उसको ट्रीटमेंट है। उसको हम लोग टेप या कुछ पत्ती होती है, स्ट्रिप्स आते हैं अलग अलग जोन के हिसाब से, अलग अलग मेटल के स्ट्रिप्स होती है, तो उस स्ट्रिप से आप उसको कवर कर सकते हो। मतलब वो कुछ नहीं, थोड़ा सा कट करके उसमें स्ट्रिप को इंसर्ट कर देते हैं, उतना ही बस। ज्यादा उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है उससे। ओके मैम। सो मेनली नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन है या वॉशरूम है तो आपको तोड़ना ही है वो, या घर चेंज करना है, राइट? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में इट शुड बी बिल्कुल। एब्सोल्युटली नो वॉशरूम, नो किचन। नो एंड इन वॉशरूम, नो किचन। साउथ वेस्ट देयर शुड बी नो एंट्रेंस डोर जहां से आप घर के बाहर जा सकते हैं, हम्म। साउथ वेस्ट में, राइट? साउथ वेस्ट में बेडरूम एंड नो वॉशरूम, मास्टर बेडरूम एंड वॉशरूम उससे जो अटैच है वो। हाँ, that is okay, but the door is not okay. एक्सक्यूज मी मैम। तो Yes, नहीं? बैक जाने के लिए भी मतलब बैक एक वरांडा जैसा है, वहां जाने के लिए साउथ में ही है डोर, तो वो भी नहीं चलेगा? अगर वो बैक आपके घर से आपको बाहर नहीं निकाल रहा है तो चलेगा, लाइक उसमें से बाहर आप नहीं जा पा रहे हो। कई बार घर फॉरेन से कंट्रीज बाहर में इन द होता है सेंस ना। बाहर छोटा सा ग्राउंड है मैम, मतलब छोटा सा एरिया है, 5 फुट का एरिया है वहां पे, मतलब हाँ, तो वहां बाथरूम से आप बाहर वगैरह जा है। सकते हो। नहीं नहीं, बाहर नहीं जा सकते। हाँ, तो घर चलेगा। के बाहर। घर के बाहर अगर आप नहीं जा सकते हो तो चलेगा। हम्म। जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी होता है ना, पीछे एक लॉन होता है, वो घर के हाँ अंदर ही हाँ। होता है, ओके तो चलेगा, ओके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। थैंक यू मैम। मैम हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर में एक डोर पीछे भी दे रखा है जो वेस्ट में है, हाँ, तो वो तो हमारे गार्डन में मतलब हम जा सकते हैं उससे, गार्डन में और फिर बाहर, बट वो यूज नहीं होता, मतलब वो तो बस गार्डन तक जाने के लिए ही होता है, वेस्ट में दे रखा है। तो उससे बाहर जा सकते हो आप, मतलब रोड पर कहीं बाहर पहले गार्डन में, उसके बाद निकल के तब रोड पर जा सकते हैं। जा सकते हैं, तो उसका मतलब वो हाँ। एंट्रेंस हो गई आपके घर की। ओके, वो वेस्ट में अगर है वो तो पॉजिटिव जोन में है तो ओके है, अगर नेगेटिव जोन में है तो उसको आपको ट्रीट वो करना पड़ेगा। पूरा, वो मिड वेस्ट में है। हाँ, वैसे हम नहीं बोल सकेंगे ना कि मिड वेस्ट मतलब। एक्चुअली हाँ हमारे यहाँ से पूरा, यहाँ से सनराइज दिखता है हमें, वो कहाँ पर निकलता है, तो उसके हाँ हिसाब से अगर मैं देखूँ तो डायरेक्शन जो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट में दिखता है भाई सनराइज, एंड उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा मूव होता है, देन हाँ नॉर्थ, दिस ईस्ट हाँ। एंड साउथ की तरफ वो वेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि हमारे यहाँ से सब पूरा सनराइज दिखता है, वो इस तरीके से मैं बता रही हूँ। सो जो पीछे का गेट डोर है ना वो हाँ, मिड वेस्ट में पड़ता है। तो मैम वो आपने बोला है वो तो ठीक है, लेकिन कैसा रहता है कि अगर सपोज हम लोग मैप से अगर यूज कर देखेंगे तो हमें परफेक्ट पता चलेगा। स्केल टू द स्केल मैप जो होता है उससे पता चलता है। ऐसे तो हम लोग जब उठे, कभी कभी बोलते कि सूर्योदय हो रहा है, साढ़े आज का सूर्योदय 5 बजे और 6 बजे, लेकिन हमको तो दिखता नहीं है ना कई बार। Okay. हमारा क्योंकि इंडिविजुअल हाउस है तो वो पूरा दिखता है किधर है। ओके। हाँ, मैम अगर अभी जो हमारा जो घर है, मैं अभी मेरे खुद का घर का एग्जांपल देती हूँ। मैं हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जब हमने उसको मैप बनवाया तो
इस फेसिंग मतलब ऐसा इस तरह से दिखना चाहिए था घर का जो फेस है, इस तरह से। वो ऐसा दिखा रहा है। तो फिर जब हमने वो मैप बनवाया तो पता चला कि जो जिसको हम ईस्ट समझ रहे हैं वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, जिसको हम साउथ ईस्ट समझ रहे हैं वो ईस्ट साउथ, मतलब धीरे धीरे पूरा मतलब। अब अगर सपोज मेरे को पूजा का लगाना है नॉर्थ ईस्ट में, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पुराने तरीके से अगर देखें तो वो नॉर्थ में फेस हो रहा है मेरा, मतलब। और जो हम लोग साउथ ईस्ट में किचन के लिए सोच रहे हैं वो ईस्ट में फेस नहीं हो रहा है, साउथ में फेस हो रहा है। तो So ये it's मैप कैसे एक्यूरेट बना सकते हैं? हाँ, मैप आपके पास अगर मैप हो तो मैप ग्रेडिंग तो हम लोग नहीं कर देंगे। अगर आपके पास मैप ना हो तो मैप नहीं। पर्सन, ड्राफ्ट पर्सन आपको मैप बना देगा। वो कुछ मैडम ज्यादा कोई नहीं पर, होता है मैम, उसका बहुत मिनिमल रहता है उसको। मैडम अच्छा कोई मैं परफेक्ट लेआउट है जो बना हुआ है जिसको गाइडेंस के लिए देख सकते हैं? आपके पास है मैप बना हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई वास्तु के हिसाब से कोई परफेक्ट लेआउट है जिसको देख के हम गाइडेंस ले सकते हैं? ये नेहा का आपने बताया ना, नेहा नहीं नहीं, बताओ एक बार। वो परफेक्ट है जो मैडम ने दिखाया था? हाँ नहीं नहीं, परफेक्ट है। नहीं नहीं, वैसा बोल रहे हैं आप, परफेक्ट लेआउट। हाँ हाँ परफेक्ट जी। तो शायद ही किसी का होगा। नहीं नहीं, किसी मेरे का पास नहीं कभी होगा, बट नहीं कोई है। बनाया हुआ है आइडियल आइडियल लेआउट जो होना चाहिए, तो हम हाँ उसको हाँ, देख के कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक मैप शेयर कर दूंगी, नेहा के थ्रू आपसे शेयर करवा दूंगी। ठीक, थैंक यू। हाँ। राइट। रवि जी, मतलब Ma'am, उसमें one more कैसा रहता आपका है, question. question। One काफी last चीजें ऐसी question. होती है कि सोने के लिए भी हम्म। इंडोर नॉर्थ ईस्ट में जो है बुजुर्ग लोग को सोने के लिए बोला जाता है, हाँ, मतलब जो एल्डर्स है। और अगर right. सपोज यंग जनरेशन अगर उसमें सोएगी, न्यू मैरिड कपल या शादी के 20-25 साल के बाद में भी अगर सोएंगे तो उसके बाद में डाइवर्स होने के चांसेस है नॉर्थ ईस्ट में अगर सोओगे। हम्म। लाइक नॉर्थ वीरेंद्र ईस्ट सहवाग। में बेडरूम नहीं होना चाहिए या नहीं फिर होना चाहिए। बेडरूम हो सकता है सिर्फ 6 साल से अंदर छोटे बच्चों का, 10 या 11 साल के बच्चों तक, उसके बाद में नहीं। और नहीं तो फिर एकदम एज पर्सन, बुजुर्ग, ओके। 70+ ऐसा मतलब तो हम लोग का हो हम सकता लोग है। कौन से दिस वन विच डायरेक्शन हम लोग सोना चाहिए आप सिर रख के? वेस्ट में सोना चाहिए सबसे बेस्ट, वेस्ट में, साउथ वेस्ट वेस्ट में वेस्ट। सिर रखना चाहिए हाँ, वेस्ट में सिर रखो या या साउथ फिर में? साउथ साउथ में सिर रखो, दो में रख साउथ, सकते मेरा साउथ ही है. एंड हाँ माय हस्बैंड आल्सो सीज ऑल दिस वास्तु. एंड हाँ, वन मोर थिंग मैम, जहाँ पे हम काम करते हैं वहां का वास्तु अगर अच्छा नहीं है, विल इट अफेक्ट अस? बिल्कुल। हाँ, इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अगर आपके पास अच्छा. में आपका घर है और ऑफिस है, नहीं नहीं, इंडिविजुअल है ना। बाहर बाहर जाके हम काम करते हैं ना, दूसरे हाँ हाँ ऑफिस या हाँ, होता है इंस्टीट्यूशंस मैम, में. उसका इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन हम लोग हाँ, उसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज किसी नहीं और का कर होता है। सकते. हाँ, तो हम लोग उस समय घर में चेंज करवा सकते हैं। मैडम तो आपने बोला, हमारे में भी हमारे को उससे बड़ा ऑफर आ सकता है या कुछ बेस्ट हो सकता है, हमारे लिए बेटर हो सकता है। सिर वेस्ट की तरफ रहना चाहिए, बट अधिकतर लोग बोलते हैं ईस्ट या साउथ की तरफ रहना चाहिए। साउथ, मैंने वेस्ट के लिए इसलिए बोला कि वास्तु शास्त्र में वेस्ट के तरफ सर अगर आप सिर रख के सोओगे तो हम्म रात के टाइम पे जो हम लोग शांत रहते हैं, तो कई हम्म चीजें हम लोग कल के लिए प्लानिंग कर सोचते हैं रात में। कई चीजें हम्म। रात में ही सोचते हैं हम लोग। ओके फ्यूचर की प्लानिंग, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हम लोग रात में सोचते हैं। तो हम्म। वेस्ट जो है वो मैनिफेस्टेशन की जगह है। ओके आप वेस्ट में बैठकर मैनिफेस्ट कर लो, आपकी विश कंप्लीट हो जाती है। तो जब हम हम्म। लोग उसमें सोएंगे तो ऑब्वियसली मैनिफेस्ट हो जाएगी। मतलब बट इनडायरेक्टली हमको ऐसा कुछ पर्टिकुलर एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए उस जगह पर सोए तो अच्छा रहता है। सिर्फ ओनली हेड। बेड ओनली, बट ईस्ट में भी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, इसमें भी रह सकता है लेकिन वेस्ट, इस वेस्ट इसलिए वेस्ट इज बोला बेस्ट। कि ओके ओके, थैंक यू। मैनिफेस्टेशन की प्लेस है वो। Ravi ji, आपका question. I think we'll take one last question and then we'll close. Yes, Ravi ji. हमारा मेन डोर जो है वो वेस्ट में है और बिल्कुल नॉर्थ की दीवार से लग करके। तो वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। आपको मनी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है? मनी प्रॉब्लम तो हरदम रहता है मैम। हाँ, मतलब इनकम तो काफी होगी लेकिन जा भी रही होगी वो। जी 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 इनकम तो काफी होती है। जी।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब उसको गेट को हटाना हाँ, तो है। गेट को हटाना जरूरी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इसका रेमेडी रहती है। उसको गेट को अंदर कुछ एक स्ट्रिप आती है अलग अलग मेटल की, तो वो अकॉर्डिंग टू वो जोन देखकर वो स्ट्रिप उसमें इंसर्ट करनी होती है, थोड़ा सा कट करके। अच्छा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम बनाना ट्री जैसे थर्सडे को पूजा करते हैं वो घर में लगा हाँ सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं मैम, तो मैम लगा आपको सकते हम हैं। कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? I will मेरा share नंबर शेयर कर देंगे। नहीं, हाँ the details. हाँ। ठीक है। बनाना ट्री मैम आप लगा सकते हो। आपको कौन सा ट्री नहीं लगाना चाहिए जो साइंटिफिक ली भी करेक्ट नहीं होते, जैसे बरगद का उसकी जड़ें पूरी अंदर घर में आकर हमारा बरगद का कुछ बोलते हैं, बनाना बैनन ट्री, Banyan tree, बैनन ट्री yeah. या पीपल। हाँ, ये जो होते हैं, नीम का भी कई बार उसकी जड़ें अंदर तक चली जाती है। नीम का ओके अच्छा रहता है, बट कई बार वो हार्म करती है हमारे घर को, उसलिए मना किया जाता है, और उसका कोई रीजन नहीं है। And मैम और plants नॉर्थ रखने की, एरिया में भी आप yes, Mike. बोलिए मैम। shall I talk? Yes, Swarna. Can we carry any metallic item or something which will prevent us from having disputes or any other negative energy in the working place? मैम I, आप वर्किंग प्लेस जो आपका केबिन होता है उसके बारे में बोल रहे हैं ना? नहीं, कैबिन, मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो वहां पे हाँ, वही जो भी डिस्प्यूट या आपका अगर है तो बैग में ऐसे हाँ कुछ तो कैरी आपके कर मैं सकते हैं ताकि इट हाँ अवॉइड बिल्कुल सम, आप कर सकते हो। कुछ है हाँ, ऐसी मैं चीजें आपको तो। उनके इसके रेमेडीज बता दूंगी। हाँ आप कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ में। हाँ और आपका डेस्क तो नहीं होता है ना आपको स्कूल में, तो आप अपने बैग में रख सकते हो, या फिर जो कबर्ड्स देते हैं आपको, पता नहीं आपके स्कूल हम्म में देते हैं या नहीं, बुक्स रखने हम्म के लिए, उसमें भी आप रख हाँ सकते हो। पता है, या रैक्स है, हाँ, तो क्या रख सकते हैं मैम आप रख ऐसे? सकते हो, या फिर आपके कुछ पर्टिकुलर क्लासेस है मैम। मैम वो एक बार पर्टिकुलर। आपसे मतलब बात करने के बाद थोड़ा ना इसमें एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ती है, जस्ट ज्यादा नहीं, बस हम्म। थोड़ा सा आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ा पता चले तो उस हिसाब से हम लोग देते हैं। कई बार किसी को वो चीज सूट नहीं होती है और किसी को हो जाती है। अच्छा, ओके। एस्ट्रोलॉजी ये तो राशि ज्यादा के नहीं, बट थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। अच्छा, जी मैम। ओके। राशि के ऊपर कुछ डिपेंड होता है क्या? एक्वायरियस या थोड़ा तो इम्पैक्ट होता है मैम। अच्छा अच्छा, ओके। होता है राशि के ऊपर भी होता है, आपके नंबर्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी होता है। ओके ओके। थोड़ा तो होता है, एक 10% तो हम लोग भी मानते हैं, राशि में भी न्यूमरोलॉजी में भी। नहीं, ऐसे जनरली बोलते हैं ना, और मनी मनी आने के लिए आप यू कीप इलायची अंडर द पिल्लो और सम क्लोव्स, और सब बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे वैसे कुछ तो है तो? बहुत सारे रेमेडीज काफी लोग बोलते हैं। वो मतलब कई बार होती है वो तो अपना लाइक फिर सेम अगेन वही होता है कि मैनिफेस्टेशन, अगर आप गुड होप से रख रहे हो तो हो भी सकता है। what you think while you're doing it, that हाँ, impacts. Yeah. अगेन फिर सब घूम फिर कर सब एक ही जगह आता है कि अगर बिलीफ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं हाँ, है। करेक्ट, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। All right. I think, is there any other question, or then we can close? मैम अगर एंजाइटी हो घर में किसी पर्सन को, तो हाँ उसके मैम। लिए आप कुछ रेमेडी बता सकते हैं? मैम उसके लिए ना आपका मैप होना जरूरी है। अभी मतलब काफी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैप क्या रहता है, आप एक बार मैप बना लोगे ना तो उसके आपके पास में पूरी चीजें डिकोड हो जाएगी। And another problem is कि आशा जी के हस्बैंड को माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टाइम अच्छा, से है माइग्रेन, दैट इज द हेड प्रॉब्लम, राइट? अगेन आपका नॉर्थ ईस्ट एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का कुछ इश्यू होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ओके। ब्रेन से रिलेटेड। रिलेटेड टू माइंड एंड मेंटल हाँ हेल्थ। हाँ। ओके।
तो आशा जी, आप आपको अपना नॉर्थ ईस्ट में अंदाज से आपके पास जो है, आपको वो एक बार मैप के थ्रू देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर सी मेन थिंग बिफोर वी मूव ऑन, लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये जो कॉर्नर्स है, राइट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर जो होना है वो वही होना है। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीजें यहाँ पर है तो देन इट्स ए वेरी बैड इम्पैक्ट, स्पेशली ऑन हेल्थ, राइट। सो वो देखने के लिए दैट मैप इज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन, इफ यू वांट, इफ यू रियली इंटरेस्टेड कि हाँ मुझे डाउट आ रहा है मेरे घर में कुछ है या ऐसे है, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हर एंड शी विल हेल्प यू इन गेटिंग द मैप डन। द मैप cost what, my 500 rupees or how much it is, I don't know. नहीं Great. नहीं, वो मैप अगर आप बनवा लोगे तो 2 रुपीज पर स्क्वायर फीट से मैप पर्सन आकर वो बना कर देगा। अच्छा, पर्सनली इनके पास, बट एवरीबडी इज हाँ, फ्रॉम मेनी अदर लेकिन स्टेट्स। अगर आपके पास में मैप हो अदर स्टेट से तो मैप आप मुझको सेंड कर दीजिए। वो मिनिमम 1000 रुपीज लेगा रीड करने के लिए। मैप मतलब घर का जो प्लान होता है, प्लान होता है, राइट, घर का जो प्लान होता है वो, दैट इज, अगर आपके पास वो है तो देन इट इज वेरी इजी। वो चाहिए और आपका लोकेशन चाहिए होगा तो गूगल गूगल अर्थ के लोकेशन। थ्रू, गूगल लोकेशन, गूगल अर्थ के थ्रू आपको ग्रीडिंग करके मिल जाएगी। मतलब उसमें कैसा होता है कि आपकी डिग्री देखना होती है घर की, कितने डिग्री पर आपका नॉर्थ आ रहा है, उसके हिसाब से फिर वो पूरे डिवाइड हो गए अलग अलग। और ये मैप मतलब है, ये आपका आपके घर का एक्सरे है ये। अगर एक्सरे और जो भी सोनोग्राफी, जो भी रिपोर्ट्स है, वो अगर होगी तो बाकी चीज डायग्नोस करने में आसान होगी, और कुछ भी नहीं। ट्रू ट्रू ट्रू, वो एब्सोल्युटली। 1000 रुपीज में आपका हो जाएगा। अगर आपके पास मैप अवेलेबल है तो नो इशू, आप किसी और से मैप बनवा कर भी भेजोगे तो चलेगा। ऑल राइट। सो बेसिकली जस्ट ये है कि हमें मैप बना के आपको भेज देना है, तो आप बता पाएंगी बेटर, हाँ, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग बिल्कुल फेल हो बिल्कुल। रहा है हमारा। हाँ Yes, she हाँ gives you very deep philosophy and all that, तो वो हम या नहीं या कर पाएंगे। राइट। तो अगर आपके पास घर का प्लान है तो उस पे ये ग्रिडिंग करके एंड ऑल शी विल बी एबल टू गिव यू, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है या नहीं है, तो देन आई एम ऑन द सेफर साइड, राइट। हाँ आपको वो डाउट भी नहीं रहेगा मन में फिर। ओके, सो अगर है तो देन आपको तो रेमेडी करनी ही करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इट्स नॉट रेमेडी तो हर किसी की है, सिर्फ एक साउथ वेस्ट का डोर और नॉर्थ ईस्ट का जो भी है जो भी है किचन और उसके लिए रेमेडी वॉशरूम, नहीं है, उसके लिए राइट। रेमेडी है, बाकी सभी के लिए रेमेडी है। एंड अनदर थिंग इज, आप लोग जो सारे लोग यहाँ पर है, शायद आपके लिए इम्पैक्ट ना हो बट आपके फैमिली मेंबर्स पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट। That is another point, right? So that's, I think, that's so wonderful. Mai, you have given us so much information. Thank you, really, thank you so थैंक यू, much. I थैंक want यू। others to say something. अगर कोई बोलना चाहता है कुछ। Yes, ma'am. Very insightful. Thank you Never very thought- much for enlightening me. It's Thank you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, madam. and we'll trouble थैंक you. यू, At least basics are clear. थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। All right. आपको मेरा नंबर नहीं, हाँ आप इनको नंबर किसी को चाहिए होगा तो शेयर कर Yeah, दीजिए। yeah, definitely. I'll share her contact details if you really are interested, कि अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली करवाइए। I would suggest कि करवाना जरूरी है, क्योंकि you know you must be doing many things. आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है, तो probably this is the reason कि नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। Right, it can be one of the things. So this is very important. Okay, so thank you, Mai, again for spending Thank 1.5 you, thank you। hours with us and giving knowledge. I know कि इसमें बहुत सारे और points हैं, अगर हम सेशन करना काफी चाहें पॉइंट्स तो है। बहुत टाइम लग जाएगा। है ना। तो let's will close it here and really thank you कि आपने इतना सारा हमको नॉलेज दिया इसके लिए, एंड एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स हमको क्लियर हो गए, बेसिक क्लियर हो गया कि क्या है और क्या नहीं है, राइट। थैंक यू सो मच, एंड एवरीबडी एल्स आई विल शेयर हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन अप्रोच हर। शी इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन।
इतने वो डाउन टू अर्थ है कि आपको ऐसा ऐसा फील होगा आप उनसे फर्स्ट टाइम बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगेगा आप कितने सालों से बात कर रहे हैं। शी इज सच ए फ्रेंडली नेचर, उनका नेचर इतना फ्रेंडली है। ओके, सो डोंट हेसिटेट एंड बी ओपन टू हर। आपके प्रॉब्लम्स भी उनको ओपनली बता सकते हैं आप लोग। शी इज एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी पर्सन। Okay, so thank you so much, Mai, and probably I will call you again. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Thank you. अभी आप लोग मत जाइए, आपका चैलेंज बाकी है। ओके, आई विल टेक हम 5 लोग minutes जाइए। ब्रेक एंड देन विल डू द लास्ट डे। वी आर ऑन द 30th डे ऑफ द चैलेंज, लास्ट डे है आज। तो एक 5 minutes का हम ब्रेक लेंगे एंड विल कम बैक बाय 9:32। ओके, ऑलराइट, गिव मी अ थम्स अप। यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, 5 minute का ब्रेक एंड देन विल कम बैक। थैंक यू सो मच। वेट। सारा सारा सामान निकाल के डेट चेक करना ना एक बार। वो मिल गया।
All right. Is everyone back?